हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लॉर्स में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के बारे में, जिसकी रेंज है सेक्शन 76 टू 106। आज हम लोग डील करेंगे सेक्शन 76 से लेके 95 तक, एंड जो कि जनरल एक्सेप्शन है, और 96 टू 106 इज कम्स अराउंड लाइक इट्स अ प्राइवेट डिफेंस। ओके, हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जनरल एक्सेप्शन इट्स स्टार्ट फ्रॉम 76 to 95, and second is private defense, it's 96 to 106. Okay, so let's start the general exception with the maxim actus non facit renum nisi mens citeria. That means an act does not render a man guilty of a crime unless his mind is not equally guilty. जिसका मतलब है कि एक आदमी तब तक उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा तब तक उसका माइंड भी गिल्टी नहीं होगा, आई मीन नहीं, इंटेंशन वहां पे नहीं होगी। हम लोग जनरल एक्सेप्शन को स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से, बिकॉज इन सेक्शन 6 देयर इज अ डेफिनेशन, like each and every section provision and illustration of IPC to be read with the general exception। like जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेक्शन 6 दिया हुआ है, definition in the code of to be understood subject to the exceptions, like throughout this code every definition of offense, every penal provision and every illustration of such definition of penal provision should be understood subject to the general exception। Section 6 IPC imposes a statutory duty on the court to consider whether the offense of the accused is covered under general exception, even if accused has not taken the plea specifically। That means a court का ये प्रोगेटिव रहेगा कि वो अपने आप से कंसिडर करेगा कि यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन है। लाइक सपोज ए लूनेटिक पर्सन, कोर्ट ने देखा है कि कोई आदमी पागल है और उसने मर्डर किया है, सो द कोर्ट, lunatic person does not take the plea of like section 684, the court must make the accused to aware that he can take the benefit of this section। जनरल एक्सेप्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक ये बर्ड व्यू बना है, आप जिससे इसको समझ सकते हैं विद कीवर्ड। मिस्टेक आपके जो आएगा जनरल एक्सेप्शन इज 76 79, जुडिशियल एक्ट 77 70 एक्ट, एक्सीडेंटल एक्ट कोई होगा तो 80 में जनरल एक्सेप्शन, नेसेसिटी आपका 81, इनएबिलिटी टू कमिट एन ऑफेंस like 82 to 86, consent 87 to 90, without consent 92, triviality slight uh, offense 95, and private defense 96 to 106। So let's start section 76, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law। nothing is an offense which is done by a person is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it। हम लोग सेक्शन 76 और 79 को साथ में पढ़ेंगे। नाउ हम लोगों को जो उसमें कंसंट्रेट करना है, आप देख सकते हैं 76 में इट्स रिटन नथिंग इज ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is to be bound by law not to do it, like bound by law to do it। okay, यहाँ पे एक मैं इसकी इलस्ट्रेशन भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि 76 में क्या है कि nothing is an offense which is bound by law to do it। there is a illustration a soldier fire on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of law। A has commit no offense, that means A एक सोल्जर है जिसने मोब पे अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे फायर कर दिया। A has commit no offense, so now you have to do like, see carefully in this illustration it's written like order by his superior officer in conformity with the command of
the law. That's mean the conformity with the command of the law. न्याय संगत हो is as per the law he did this act. Like there's one more example. Once एक पुलिसमैन था और वो एक शराब के कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेता था। यूजली वो पैसे लेता था तो उसने उसको फ़ोन किया कि उसको पैसे नहीं आए 20 तारीख तक, 1 तारीख में आ जाते थे, तो आए नहीं। उसने फ़ोन किया कि पैसे दे। अब कॉन्ट्रैक्टर एक रिच आदमी था, तो उसने बोला कि अभी पैसे नहीं हैं, अभी इस मंथ कोविड हो गया है, कुछ हो गया है, तो पैसे नहीं हो पाएँगे। तो उसने अपने कांस्टेबल को बोला कि शूट ऑन मी, और उसने उसको गोली मार दी। तो बोला कि भई मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, 76 में इट्स रिटन लाइक ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। But see, there is a written its conformity with the command of the law. That's mean कि ये आपका न्याय संगत होना चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए। नाउ वी कैन गो थ्रू द सेक्शन 79. 79 is written, an act done by a person justified by mistake of a fact believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law, or who by reason to mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it. So यहाँ पे भी हम लोग इंस्टीट्यूशन से लाइक यहाँ पे लिखा है जस्टिफाई बाय लॉ टू डूइंग, उसने कोई एक्ट किया जो जस्टिफाई लाइक हम। सो सेक्शन 79 को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक केस कोट करना चाहूंगा, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण 1979 सुप्रीम कोर्ट। सत्यम शिवम सुंदरम मूवी थी और इज पास बाय सेंसर एंड सो सुप्रीम कोर्ट से लाइक सेंसर बोर्ड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इसमें जो था लाइक ऑब्सीन्स सीन के लिए केस किया गया था 292। So Supreme Court say movie passed is censored and censor already give him adult certificate since censor represent government of India and law, hence it was justified by law. So यहाँ पे सेक्शन 79 की यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 79 make an offense and non offense when only when act is justified by law or bona fide belief mistake of fact to be so justified. So यहाँ पे 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा। Section 77, Act of Judge when acting judicially. So, nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which is good in good faith he believed to be given to him by law. So इसमें क्या है कि जजों को प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर वो गुड फेथ में कोई जजमेंट देते हैं तो उसमें उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। सो यहाँ पे एक जजमेंट भी मैंने कोट किया हुआ है, आई थिंक इसे रचनापोली सुब्बा राव वर्सेस एडवोकेट जनरल। सो इस जजमेंट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लाइक जजेस हैव द प्रोटेक्शन अंडर, like I'll let you know the act. There is a two act which is protect to the judges, Judicial Officer Protection Act 8050 and Judicial Judge Protection Act 1985. Both act give the immunity to the judges into the civil matter and एक और जजमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, Ram Pratap Sharma versus Dayanand 1977. So in this case, what happened? A high court judge addressed to the bar and criticized the government while addressing to the bar. So judges like advocate wrote letter to the Prime Minister and Chief Justice of India and notice sent to the judges and like the people who is wrote. So in this case he got the protection because उसने जो बोला था वो इस एक्ट में उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया है, जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 8050 एंड 1985। एंड एक और केस था जो कि दयाशंकर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद 1987। सो यहाँ पे ये जुडिशियल ऑफिसर थे and in this case what happened, like Supreme Court held that judge is not protect for his private act. In this case accused court doing cheating in the LLM एग्जाम। ये एक जज साहब थे और ये LLM का एग्जाम दे रहे थे और ये चीटिंग करते हुए पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट इज इन आवर ओपिनियन
conclusion reached by inquiry officer that petitioner use unfair means is fully justified. No amount of deny could take his away from the hard facts uh, received. So the conduct of the petitioner is unworthy, and uh, judicial officer cannot have two standard, one of inside the code and one other is outside the code. So they must be only one standard to like with the honesty and integrity. They cannot even remotely unworthy for the office they occupy. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया उनकी सर्विसेज से। जज के कोई भी एक्ट जो उसकी जुडिशियल कैपेसिटी में नहीं है इज नॉट गोइंग टू कवर अंडर दिस सेक्शन 77। अगर वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई जजमेंट देता है, ऑर्डर देता है, तो वो इसमें उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसका कोई प्राइवेट एक्ट करता है, so then in that scenario, judge is not going to get the protection under section 77 act of judge when acting judicially. Only he can get the protection. So section 77 protect the judges and 78 protect those person who act on order of the judge. So 78 act done pursuance of the judgment or order of the court. Nothing which is done in pursuance of or which is won by the judgment or order of a court of justice, if done whilst such judgment or order remain in force, is an offence. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass a judgment in order, provided the person doing the act in good faith believe that the court had such jurisdiction. So इसमें क्या होता है कि आपके जो कोर्ट की ऑर्डर्स हैं या जजमेंट है उनके बिहाफ पे जो एक्ट करता है वो कोई ऑफेंस नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हैंगमैन। सो हैंगमैन को किस एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगी कि वो फांसी देता है। सो इट्स लाइक बाउंड बाय लॉ, राइट, जस्टिफाइड बाय लॉ 79 and follow the order of the court. So he's got the protection under 78। and jail authorities, suppose jail authority ने किसी का गलत मतलब जज ऑर्डर हो गया और उसको जेल अथॉरिटी ने कन्फाइनमेंट कर दिया, तो ही इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नो ही इज प्रोटेक्टेड बाय 78। और पुलिस अरेस्ट somebody, he is also get the protection under 78। so 78 gives the immunity who follow the code of the order of the code। so जो भी कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जज के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ही गेट द इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 78। सेक्शन 80 accident in doing a lawful act। so nothing is an offense which is done by accident or misfortune, so misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner। by lawful means with proper care and caution। so यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस सेक्शन में क्या है कि जो एक्सीडेंट होगा वो मिसफॉर्चून है। लाइक एक्सीडेंट की डेफिनेशन दी गई है, आई जस्ट रीड इट फॉर यू, आई जस्ट कॉपी फ्रॉम समवेयर। an accident is an incident which is take place out of the ordinary course of event which is no man of ordinary prudence could anticipate and take a step to avoid it। that mean like जो ये एक्सीडेंट वर्ड है ये आया है एसिडेरी, टू हैपन बाय चांस। लाइक सो यहाँ पे एक मिसफॉर्चून यानी कि इसमें एक बुक है आरसी निगम की, उन्होंने डिफरेंस दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून। सो एक्सीडेंट लाइज इन द फैक्ट, in the accident only injury to another person, wherein misfortune cause as much as to the injury another author as to the another uh, unconnected with the act। so मिसफॉर्चून में क्या होगा कि ऑथर को इंजरी तो अनदर पर्सन को तो इंजरी होगी, ऑथर को भी इंजरी हो रही है, बट इन एक्सीडेंट इट्स इंजरी टू अनदर पर्सन। सो ये और जो एक्सीडेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं होती, नॉलेज भी नहीं होती, and accident have unknown and unintended consequences। so ये है एक्सीडेंट के बारे में।
सो एक्सीडेंट को डिफाइन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में केस लॉ भी डिस्कस करना चाहूँगा। देयर इज़ अ केस लॉ, सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2003। सो इस केस लॉ में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि एक्सीडेंट के अंदर 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये 5 एलिमेंट क्या है कि एक्सीडेंट होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, एंड लॉफुल मैनर में होना चाहिए, एंड लॉफुल मीन्स यूज होनी चाहिए, एंड प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन होना चाहिए। तब आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट मिलेगा। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 81, it's called inevitable accident. Like 80 is accident and 81 is inevitable accident. So act likely to be cause harm but done without criminal intent and to be prevent other harm. That means इसका मतलब है कि हम लोग छोटे हार्म को बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर देते हैं। सो नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge that it's likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm। कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म पहुंचाने की, एंड इन गुड फेथ फॉर पर्पस टू प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। सो पर्सन या प्रॉपर्टी जो बड़ा हार्म है उसको बचाने के लिए छोटा हार्म कर रहे हैं हम इसमें। सो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, एंड इसको ही प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सैल्वेज। In accident like there is no criminal intention, no criminal knowledge, but in necessity no criminal intention and have the knowledge। okay, so यहाँ पे मैं एक आपको बताना चाहूँगा गैवलिन विल्सन जो इसमें जो स्टूडेंट्स है कि सम टाइम law have to be broken to achieve a greater good। ओके, सो यहाँ पे बेंथम ने भी कोट किया है, बेंथम ने यहाँ पे दी हुई है, इन 3 सिचुएशन डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कैन बी गिवन। सो 3 सिचुएशन है जहाँ पे डिफेंस दिया जा सकता है नेसेसिटी का। लाइक फर्स्ट, हार्म टू बी अकर टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर हो रहा है। नो अदर मीन्स टू अवॉइड टू ग्रेटर हार्म, कोई मीन्स नहीं है जो अवॉइड कर सके ग्रेटर हार्म को, बड़े हार्म को, एंड नो अदर ऑप्शन टू कमिट दिस हार्म, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू लाइक डिस्कस द ingredient of 81, like the act of the accused must be done without any criminal intention to cause the harm। कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस हार्म को कोज करने की, एंड ingredient 2, the harm must be done in good faith to prevent other harm और पर्सन और प्रॉपर्टी। जो हार्म है वो प्रिवेंट करने के लिए है अदर हार्म को, पर्सन या प्रॉपर्टी का जो भी है। एंड नंबर 3, द हार्म मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, राइट। सो यहाँ पे एक मैक्सिम भी दी हुई है जो है क्वेड नेसेसिटी नॉन हैबिट लेजम, नेसेसिटी नीड नो लॉ। एंड एक और दूसरी भी इस यहाँ पे एक मैक्सिम है, necessity vincit legan, necessity overcome the law। okay, so here I just want to share the illustration। so A is the captain of the steam vessel, suddenly and without any fault or negligence on his part। A एक कैप्टन है और बिना उसकी किसी नेग्लिजेंस और उसके फाल्ट के वो पाता है, find him in such a situation that before he can stop his vessel he must be inevitably run down a boat B with the 20 or 30 passenger on the board, unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 पैसेंजर ऑन द बोर्ड। सो वो बोट चला रहा है, उसके सामने एक बोट आ जाती है, एक के सामने एक बोट आ जाती है बी, उसमें 20 और 30 पीपल हैं, और एक बोट दूसरी है सी, वो भी उसी के सामने, उसमें 2 पीपल हैं। और इसकी गलती नहीं है, ये अपनी प्रॉपर लाइक विदाउट एनी फॉल्ट एंड नेग्लिजेंस ही इज रनिंग हिज वेसल। सो अब वो क्या करता है, वो देखता है कि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो सामने ये 20 लोग जो बोट में हैं, 30 लोग हैं, ये मर जाएंगे, और एक दूसरी तरफ एक बोट है उसमें 2 लोग हैं। सो हेयर if he alter his course without any intention to run down boat C in good faith for the purpose of avoiding
द डेंजर टू द पैसेंजर ऑन बोर्ड बी। अब वो बोर्ड बी के पैसेंजर के डेंजर को अवॉइड करने के लिए, जिसमें और गुड फेथ में, and he is not guilty of an offense though he may run down the boat sea by doing an act which he knew was likely to cause the effect if it is found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid as such is excuse him in incurring the risk of running down sea. So इसमें क्या है, वो कोशिश कर रहा है कि सी को भी बचा पाए, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर वो वेसल की अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो दो लोग मारे जाएंगे। तो इन दैट सिनेरियो ही मेड नो ऑफेंस। एंड देयर इज वन मोर इलस्ट्रेशन। ए in a great fire pull down a house in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith to saving human life or property. Here if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse a act, is not guilty of the offense. ये दूसरी illustration में क्या हुआ है कि एक घर में आग लग जाती है। सो क्या होता है कि आग लग जाती है तो जो ए है वो बीच में जो घर है लकड़ी का उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है ताकि आग फैले ना। तो आग को रोकने के लिए जो उसने लाइक जो बड़ा हार्म होने वाला है उसको रोकने के लिए जो उसका एक्ट है, उसने जो दूसरा घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो वो उसका एक्ट गुड फेथ में है और वो इमेंट एक्ट है, वो बाद में उसको नहीं कर सकता। तो इस एक्ट में उसके पास में ही इज नॉट मेड एनी ऑफेंस। सेक्शन 82, act of a child under 7 year of age. So nothing is an offense which is done by a child under 7 year of age. So ये section आपका excusable exceptions है. So law believe child below 7 year of age is duly capex. He is incapable to commit a crime. वो capable नहीं है कोई भी commit करने के लिए crime, और the reason behind that, like the child lack mental ability to understand the consequences of the act. जो बच्चा है 7 साल से कम का है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि उसके एक्ट के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। दैट्स व्हाई इट ही इज नॉट केपेबल टू फॉर्मिंग द नेसेसरी मेंसीरिया। वो मेंसीरिया फॉर्म नहीं कर सकता। सो सेक्शन 82 गिव द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी टू द चाइल्ड। अगर 7 साल से कम का है बच्चा below the 7 year, so he will get the absolute immunity. बट अगर वो 7 साल का है सो ही इज गोइंग टू फॉलो इन सेक्शन 83, फिर वो 83 में आएगा। एंड यहाँ पे एक केस लॉ भी है, श्याम बहादुर वर्सेस बिहार 1967। द सेम केस, लाइक एक बच्चा था, उसको एक गोल्ड का कुछ मिला तो उसने वो मिट्टी में दबा दिया। सो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बच्चा 7 साल से एज कम है, सो ही इज कमिट नो ऑफेंस, ही इज नॉट अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। सो यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलेगी। सेक्शन 83, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबाउ 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 year of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of nature and consequences of his conduct on that occasion. That's mean in section 83 यहाँ पे एक 7 साल से ज्यादा एज का बच्चा है और 12 ईयर से कम का है, सो ही डज नॉट गेट द लाइक sufficient maturity. So if he is not sufficient mature to judge the nature and consequences of his conduct, then he is going to get the immunity. This is not duly in capex, but we can say like and in 83 child is not going to get the absolute immunity, there is a partial immunity. एंड लाइक अगर 12 साल से ज्यादा बच्चा है तो फिर हम लोग उसको जेजे एक्ट में पनिश करेंगे। और आईपीसी में 84 में आपके जो चाइल्ड हैं, लाइक सेक्शन 83 में अगर उसने
उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ही अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस एंड नेचर ऑफ द एक्ट, देन अगर वो 12 साल से भी कम का है तो भी फिर उसको हम वो उसको पार्शियली इम्यूनिटी मिलेगी, ही इज नॉट गोइंग टू गेट द लाइक फुल इम्यूनिटी. ओके. Section 84, Act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing, by reason of unsoundness of mind, in he is incapable to knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary the law. दैट्स मीन इंसेंटिनिटी में क्या होता है कि आदमी को पता नहीं है वो क्या कर रहा है, इज लाइक आप बोल सकते हैं अनसाउंड माइंड. सो इंसेनिटी को डिफाइन किया है. इंसेनिटी दो तरह की है, लीगल इंसेनिटी एंड मेडिकल इंसेनिटी. सो एक आपका केस लो है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड can be synonymous with the insanity. And इसमें बताया गया है कि there is no definition of unsoundness of mind, or like, so how we evaluate, so mainly treat this expression as equivalent to insanity. And so every person who is mentally this mental disease is not in facto exempted from criminal responsibility. So code concerned with the legal insanity, not with the medical insanity. And what is a legal insanity? Legal insanity means disorder of mind which is pair the cognitive faculty, I mean जो अपने सोचने समझने की क्षमता है उससे डील करता है. That he कॉल्ड रीजनेबल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन. सो हम लोग अगर वो बस सोचने समझने की उसकी क्षमता नहीं है और वो जो एक्ट कर रहा है उसको नहीं पता, सो देन ही इज गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84. The person is incapable to understand the nature and the consequences of his action. Section 85, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication, and intoxication caused against his will. So nothing is an offense which is done by a person who is at the time of doing it is by the reason of intoxication incapable to knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary of law, providing that the other uh, thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. So in that mean in 85 यहाँ पे क्या है, intoxication की हालत में कोई बंदा offense करता है, he don't know what he is doing and what is the nature and consequences of his act, then in that scenario, and जो intoxication उसने किया है वो is without his knowledge or without his consent. वो इंटॉक्सिकेशन उसने किया है, उसने जो नशा किया है वो उसकी बिना मर्जी के बिना विल के किया है. सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ऑफेंस करता है जो कि वो कर रहा है उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा है, उस समय पे वो ये सोचने समझने की स्थिति में नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और जो उसने वो इंटॉक्सिकेशन किया है, जो उसने ड्रिंक की है या जो भी उसने मतलब नशा किया है, वो उसकी विल के अगेंस्ट है, उसकी मर्जी नहीं थी ऐसा करने की. सो इन 85 वी आर डील विद intoxication without the will. But in 86 is also the continuation of the 85, offense requiring a particular intent or knowledge committing by one who is intoxicated. So in 86 में मैं आपको बताता हूँ, in case where an act done by an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable for the deal with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. दैट्स मीन अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, उसे नॉलेज है वो क्या कर रहा है, अगर सपोज हम सपोज करेंगे कि उसने वो नशे में नहीं है तो उसे नॉलेज है वो क्या कर रहा है, तो हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे अनलेस द थिंग व्हिच इंटॉक्सिकेटिंग हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, कि उसे ऐसा नॉलेज नहीं है. तो इंटॉक्सिकेशन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, दो पार्ट में डील किया हुआ है कि जो आपका इंटॉक्सिकेशन होता है वो टू टाइप का होता है, एक वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन एंड इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन. सो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन यानी कि अगेंस्ट माय विल और नॉलेज, एंड द लेवल ऑफ
intoxication is so high, I'm not know the consequences of my act. एक maxim है, quasi pact embrius luet sobrius, like he who does wrong when drunk must be punished when sober. So वॉलेंट इसमें एक केस लो है आपका, जेठूराम वर्सेस एमपी 1960. सो इसमें भी बोला गया है कि वॉलेंट्री ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर क्राइम. अगर परसुएशन है, किसी ने आपको जबरदस्ती, जैसे आप कहे कि अरे यार दोस्त से पिएगा नहीं, और तो वो फिर आपका परसुएशन माना जाएगा. इट्स नॉट अगेंस्ट योर विल, आपकी यहाँ पे इंसेंट कंसेंट मानी जाएगी. सो 85 and 86 deal with the effect of intoxication and whether intoxication available as a general exception, like if एक पर्सन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करता है, इट्स मीन अगेंस्ट हिज विल and without his knowledge. So and such a level, like he don't know the understanding of nature and consequences of his act. He is completely exonerated from the offense. उसको completely exonerated कर देंगे हम, offense से बरी कर देंगे, which we can say get full इम्यूनिटी. सो अगर उसने उसके विल के बिना इंटॉक्सिकेशन हुआ है और इस लेवल पे हुआ है कि उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सो उसको हम लोग बरी कर देंगे कि वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ. लेकिन इन सेक्शन 86 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 85. इन केस ए पर्सन इज इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली, उसने अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेशन किया है, उसको प्रोजुएंस में किया है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से किया है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑफेंस को सेपरेट पनिश करेंगे फॉर उसकी नॉलेज के लिए, और इंटेंशन के लिए सेपरेट पनिश करेंगे. इन केस नॉलेज ऑफ एक्यूज इज प्रज्यूम्ड, कि उसकी हम लोग ये प्रज्यूम कर लेंगे कि उसको नॉलेज है जो वो कर रहा है, बिकॉज उसने अपने आप से दारू पी है, एंड ही इज मेड इक्वली लाइबल एज इफ ही इज नॉलेज एज ही इज नॉट इंटॉक्सिकेशन. तो वो इस लेवल में, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो उसको नॉलेज है, तो हम सेम लेवल पे उसको पनिश करेंगे. बट द फैक्ट कि he had no knowledge because of intoxication. So but in ये उसको डिफेंस नहीं देंगे हम इस केस में, because no law present he had knowledge of if he was intoxication. Give practical immunity, give a partial immunity that no presumption regarding इंटेंशन. सो हम लोग उसको जो उसकी इंटेंशन है उसके रिगार्डिंग तो कोई इसमें प्रिजम्पशन नहीं है, बट उसको नॉलेज है, ये हम लोग प्रिजम्पशन इसमें करेंगे. प्रोसिक्यूशन विल लाइक प्रूव द इंटेंशन, ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है. एंड वासुदेव वर्सेस पेप्सू, in Honorable Supreme Court held, if in a case after the act committed, the accused know what he is doing in the case, we presume he was capable to forming the requisite intention. So, however, if after the committing the offense accused is proved he don't know the nature and consequences of his act, and so intoxicated that it is impossible to see his uh, power of reasoning is intent in such a level, like उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है. सो हम लोग कंसेंट, लाइक हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 87 से 93. उससे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज अ कंसेंट. सो कंसेंट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी इन सेक्शन 90. इज टेल अबाउट us what is not consent. एंड एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उदय वर्सेस कर्नाटका 2003 सुप्रीम कोर्ट. उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कंसेंट मींस active will in the mind of a person to permit the doing of the act of the knowledge of what is to be done, or what the nature of the act that the being done essential to the consent to an act. एंड लाइक कंसेंट क्या है आपका, इसी जजमेंट में दिया है, कंसेंट इज एक रीजन है एक एक्ट का. कंसेंट देने से पहले आदमी उसे अपने दिमाग में तोलता है, आई मीन ही ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या ही मतलब होगा अगर मैं ये कंसेंट देता हूँ. सो एक मैक्सिम है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. if a man if a harm is caused with my consent, that I can't complain about it.
और एक ये आपका ए मैन इज़ अ जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, नो मैन कंसेंट टू समथिंग व्हिच इज़ इनजस्टिस टू हिज ओन इंटरेस्ट। सो आईपीसी में एक हम फ्री कंसेंट को समझ सकते हैं कि अगर कंसेंट टेंटेड है या फोर्थ में दी गई है, तो उस कंसेंट को कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एंड सबमिशन में एक होता है, सबमिशन में विल नहीं होती, कंसेंट होती है। अगर आपने किसी के लाइक कोई बड़ा आपसे कुछ कह रहा है या किसी दबाव में, मतलब दबाव भी नहीं है लेकिन आपने कंसेंट दिए, तो उसको हम सबमिशन कहेंगे। एवरी कंसेंट हैज सबमिशन, बट एवरी सबमिशन मे नॉट बी कंसेंट। कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दो तरह की कंसेंट होती है। आपके सामने से बोला है कि भाई मेरी कंसेंट है, और एक आपकी इम्प्लाइड कंसेंट भी होती है कि हाँ भाई आप आए हैं तो आपकी कंसेंट है, तो ये इम्प्लाइड कंसेंट होती है। सेक्शन 90, कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सो आपके अगर किसी कंसेंट किसी फियर में या फिर मिसकंसेप्शन में दी गई है, सो उस कंसेंट के बारे में सेक्शन 90, लाइक, so it's a negative section, like a consent is not such a consent as intended by a section of this code। जो इसमें कंसेंट दी गई है जो इस कोड में नहीं है, वो कंसेंट ये है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। अगर कोई कंसेंट दी गई है जो किसी फियर में दी गई है इंजरी के, और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नो और हैज रीजन टू बिलीव that the consent was given in consequences of such fear of misconception। so यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं आपके सेक्शन 90 में, like fear of injury। so fear of injury, like injury is defined in section 44। चार टाइप की इंजरी होती है आपकी: बॉडी इंजरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड इंजरी, रेपुटेशन रिलेटेड इंजरी, एंड माइंड रिलेटेड इंजरी। सो अगर ये चारों में से कोई भी इंजरी है जिसका उसको फियर है, उसमें अगर उसने वो कोई कंसेंट दी है, तो वो विशेटेड कंसेंट मानी जाएगी। या फिर दूसरी है आपकी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कि उसको दो तरह की है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट भी। एक तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, किसी ने किया है आपको कंसेंट दी है लेकिन वो कुछ और सोच के दी है, उस आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। एक इनोसेंट कंसेंट। आपको मैं एक केस लो बताना चाहूंगा इसमें। एक केस लो था जिसमें स्नेहा खातून वर्सेस बिहार 1989 पटना हाई कोर्ट। इट वाज हेल्ड द कंसेंट obtained on promise to be fulfilled future uncertain date does not ipso facto vitiate consent। लाइक आपने कुछ फ्यूचर का बोल के कुछ कंसेंट ली है, तो वो कंसेंट आपकी विशेडेड कंसेंट मानी जाएगी। एक और केस लो है बिहार से, ये भी दिलीप कुमार वर्सेस बिहार 2005। सो इस केस में भी है, इट वाज हेल्ड दैट कंसेंट गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट invalidate the consent unless the time of taking the consent। सो अगर कंसेंट लेते वक्त मिसकंसेप्शन में कंसेंट दी है, लाइक द अक्यूज हैड अल्टीरियर मोटिव इन हिज माइंड, उसने अगर कंसेंट लेते वक्त माइंड में कोई खुराफात थी, फिर वो कंसेंट विशेटेड कंसेंट मानी जाएगी। एंड कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय इन person who from unsound mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of act to which he given is in his consent or consent of a child। चलिए मैं ये भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। unless the contrary appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 year of age। सो इसमें दो चीजें हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन। सो अगर इंसेन पर्सन ने कोई कंसेंट दी है, लाइक बिकॉज ही इज नॉट अवेयर अबाउट द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द हिज एक्ट, और वो कंसेंट दे रहा है, तो वो कंसेंट भी विशेटेड मानी जाएगी, वो कंसेंट कंसिडर नहीं करी जाएगी। एंड देन सेकंड, द कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड जो 12 साल से कम का है, उसकी कंसेंट को भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। लाइक अकॉर्डिंग टू आईपीसी कंसेंट देने की एज 12 साल है, बट अनलेस लाइक रेप इन 375 वो कहता है कि एक्सप्रेसली मेंशन कि 18 साल से कम लड़की लड़की है, तो उसकी कंसेंट कंसिडरेशन और कंसेंट कंसिडर नहीं करी जाएगी। बट इन आईपीसी अगर नॉर्मल हम बात करें कंसेंट की, अगर आप
लाइक सेक्शन 90 में इट्स क्लियर कि अगर 12 साल से आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी कंसेंट कंसिडर की जाएगी। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 90। सेक्शन 87, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. So इसमें क्या कहा गया है, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt or which is not known by the doer is likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has been given consent whether expressly or implied to suffer that harm or reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. So यहाँ पे दो चीज दी हुई है, लाइक कंसेंट। फर्स्ट हम लोग कंसेंट समझ सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरह की कंसेंट इस एक्ट में बताइए, एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट क्या होती है कि आपने बोल के अपनी कंसेंट दी है, राइट। एंड इम्प्लाई कंसेंट लाइक आपकी एक्ट से आपकी कंसेंट का पता चल रहा है। ओके, एंड सेकंड थिंग लाइक द अबव 80। सो जो कंसेंट दे रहा है वो अबव 80 है, लाइक दो लोग कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो गेम में आपको हर्ट भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक मैक्सिम दिया गया है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। सो दैट्स मीन हु कंसेंट टू an act has no right to claim damage for injury caused to him by that act. So वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया ये 87 से रिलेट कर सकते हैं मैक्सिम। कई बार पूछ लेते हैं कि जो ये मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया किस एक्ट से संबंधित है। सो इसमें क्या है कि आपने अपनी कंसेंट ली है, सो यू डोंट हैव राइट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। ओके, सो एंड यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 87। Section 88, act not intended to cause death done by consent in good faith for person benefits. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause any person for whose benefit it's done in good faith and who is has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. So in 88 यहाँ पे क्या है आपकी, ये जो एक्ट है, एक्ट इज नॉट इंटेंटेड टू कोज डेथ। आपको डेथ कोज करने के लिए एक्ट नहीं किया गया। सो पर्सन इंटेंशन इज नॉट टू कोज डेथ एंड डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। लाइक एक डॉक्टर है, सो इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई जस्ट read the illustration. A surgeon knowing that the particular operation is likely to cause the death of Z. ए एक सर्जन है जिसको पता है कि ऑपरेशन के अंदर जी की डेथ भी हो सकती है। हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेन बट नॉट intended to cause Z death and intending in good faith Z benefit perform that operation on Z with Z consent. So जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो Z के बेनिफिट के लिए ऑपरेशन करता है Z की कंसेंट लेने के बाद में, गुड फेथ में, सारी लाइक प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ में वो ऑपरेशन करता है। एंड ए हैज कमिट नो ऑफेंस। सपोज अगर ए की डेथ भी हो जाती है तो भी उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखा है, लाइक विक्टिम के बेनिफिट्स के लिए वो ये एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उसको 88 का बेनिफिट मिले। एंड मेरेली बिकॉज कंसेंट हैज बीन गिवन, it is not sufficient defense if medical practitioners did not have the reasonable sufficient knowledge and experience. But if an ordinary operation being done by the expert and there is some problem occur while performing the operation और बाद में कुछ समस्या हो जाती है, then in that scenario he is going to get the benefit. But suppose अगर उसने अपनी consent दिया और आपको sufficient experience नहीं है और knowledge नहीं है, सो इन दैट सिनेरियो आपको फिर 88 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड
or insane person by consent of guardian. So nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 year of age or unsound mind by or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person of an offense by reason of any harm which it may be caused or be intended by the doer to cause or be known by the doer it likely to cause to that person provided proviso. So इसमें क्या है कि 89 में जो बच्चा है जिसकी एज 12 ईयर से कम है या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसके लिए कंसेंट उसके गार्जियन देंगे और गार्जियन भी या तो उसके बाय गार्जियन होंगे या फिर लॉफुल गार्जियन। सो इसको इसमें आपकी जो कंसेंट है वो लॉफुल गार्जियन देंगे और वो जो आपकी गार्जियन कंसेंट दे रहे हैं, इट्स फॉर द बेनिफिट फॉर द चाइल्ड। like it's written over there, nothing which is done in good faith for benefit for the child. So यहाँ पे benefit होगा और बच्चा अंडर 12 ईयर और मे बी अनसाउंड माइंड। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रोवाइजो में। फर्स्ट दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनली causing ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग द causing डेथ। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट में कि आपकी इंटेंशन नहीं है कोज करने की डेथ, okay, and it's for the benefit for the child. Secondly, that this exemption shall not extend to doing of anything which is person doing to know to be likely to cause death or any purpose other than to preventing the death of grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity. That means secondly में क्या कहा गया है इस एक्सेप्शन में कि हम लोग जो कर रहे हैं कुछ भी कि मे बी डेथ कोज हो सकती है बट हम लोग जो हर्ट कर रहे हैं वो प्रिवेंट करने के लिए कि उसको उसकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, फिर क्योरिंग ऑफ द ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। उसको कोई बीमारी है लाइक सपोज कैंसर है तो उसको आगे उसकी डेथ ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको हर्ट कर रहे हैं। ओके, देन सेकेंडली दिस इज द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट or the attempt to the causing grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। ये है कि इस एक्सेप्शन में हम लोग वॉलेंट्री कोर्स नहीं करेंगे उसको हर्ट कि वॉलेंट्री हम हर्ट कर रहे हैं, इट्स फॉर ओनली प्रिवेंटिंग द डेथ और grievous hurt or curing of grievous disease। and fourthly this that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not be extend। ओके, सो फोर्थली में क्या हो, तो फोर्थली में माँ बाप कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं बट नो ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड इज अलाउड इन दिस फोर्थ एक्सेप्शन। सो मतलब क्या है कि फोर्थ में माँ बाप ऐसा है कि बच्चे को मतलब उसका पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए उसकी किडनी बेच दे, तो ऐसा वो कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को वो अपने आप जैसे बच्चे को कुछ कर सकते हैं, मार सकते हैं फॉर द चाइल्ड बेनिफिट, ऐसा उनको अलाउ है बट नो ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड इज अलाउड इन दिस फोर्थ सेक्शन 91 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली और हार्म कोज। तो इसका मतलब है 91 का कि ऐसे ऑफेंस जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस हैं उनका आपको जनरल एक्सेप्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। Okay, the exception in section 87, 88, and 89 do not extend to acts which are offense independently of any harm which they may cause। So ऐसे offense जो exception है 87 में, 89 में और 88 और 89 में, वो अगर इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, विच दे मे कॉज और टू बी इंटेंटेड टू कॉज, या फिर जिनकी इंटेंशन है कॉज करने की और नोन टू बी लाइकली टू कॉज, और जिनसे किसी को मतलब हार्म हो सकता है, द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन। यानी कि ऐसे एक्ट जिनमें जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है अगर उन
को करने के लिए आप कंसेंट भी दे देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फिर भी ऑफेंस ही रहेंगे और उनको इंडिपेंडेंटली ही ट्रीट किया जाएगा। सो इस इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हो जाएगा, like causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense independently of any harm which it may be caused or be intended to cause to the woman। यानी कि अगर एक मिसकैरेज अगर कोई करता है, अनलेस अगर वो गुड फेथ में हो और उस वुमेन की लाइफ बचाने के लिए हो, उसको छोड़ के अगर वो किया जाता है तो वो ऑफेंस होगा। देयरफॉर इट इज नॉट इन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ सच हार्म and the consent of the woman or her guardian of the causing of such miscarriage does not justify the act। so अगर miscarriage अगर वुमेन की जान बचाने के लिए किया जाता है तो इस सिनेरियो में तो वो ऑफेंस नहीं होगा। बट अगर वुमेन अपनी कंसेंट भी दे देती है और फिर मिसकैरेज किया जाता है तो वो फिर एक ऑफेंस होगा, उसमें जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्ट जो इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है उसमें आपको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यही 91 कहता है। सेक्शन 92 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। सो जो सेक्शन 92 है ये आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक एक तरह से टेम्परेरी गाइडेंशिप प्रोवाइड करता है। आई जस्ट read it for you। Nothing is an offense by reason of any harm which is it may be caused to a person for whose benefit it's done in good faith। अगर एक्ट बेनिफिट के लिए गुड फेथ में किया गया है इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, इवन बिना पर्सन की कंसेंट के, इफ द circumstances आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, कि इस तरह की सिचुएशन है कि इम्पॉसिबल है उस पर्सन की उस समय पे कंसेंट ले पाना, और या इफ द पर्सन इज इनकेपेबल टू गिविंग द कंसेंट एंड हैज नो गार्जियनशिप और अदर पर्सन in lawful charge of him from whom it is possible to obtain the consent in time of the thing to be done with benefit। so इस सिचुएशन में क्या है कि person is not capable, he is incapable to give the consent and no guardianship, अगर और guardianship या कोई guardian या कोई person जो lawful charge ले सकता है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो इस समय पे आप इम्प्लाइड कंसेंट ले सकते हैं, एक तरह से अपने आप को ही सेल्फ प्रोक्लेम बिकम द सेल्फ गार्जियनशिप एंड देन आप वो एक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जो एक्ट होगा वो पर्सन के बेनिफिट के लिए होगा। सेक्शन 92 इज इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर विक्टिम इज नॉट एबल टू गिव हिज कंसेंट and hence matter is not taken immediately, it may lead to very serious consequences। That's the reason why the person who want to give the benefit take decision on behalf of the victim and temporary guardianship and try to give the benefit। okay so इसमें प्रोवाइजो दिए गए हैं, तो आपके लिए मैं प्रोवाइजो समझा देता हूँ। like first that this exception shall not extend to the intention causing the death or the attempting to cause the death। लाइक फर्स्टली हम लोग इसमें उसकी इंटेंशन नहीं है उसकी डेथ करने की और ना ही कोज अटेम्प्ट करने की डेथ। सेकेंडली that this exception shall not extend to the doing the anything which is person doing to know to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or causing of any grievous disease or infirmity। अगर वो उसको लाइक आप समझ सकते हैं कि यू हैव द नॉलेज ऑफ डेथ, आपको नॉलेज है कि उसकी डेथ हो सकती है आपके एक्ट से, बट आप वो जो एक्ट कर रहे हो वो उसकी जान बचाने के लिए टू प्रिवेंट द ग्रीवियस हार्ट डेथ और ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, उससे बचाने के लिए आप ये एक्ट कर रहे हो। थर्डली that this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt or to attempting to cause hurt or any purpose other than the preventing of disease or hurt। यानी कि जो थर्ड एक्सेप्शन है इसमें आप वॉलेंटरी उसको हर्ट नहीं कर सकते या अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप उसकी लाइफ को सेव करने के लिए ही बस उसको हर्ट कर सकते हो, उसकी लाइफ को डेथ से बचाने के लिए या उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए ही आप उसको हर्ट कर सकते हो। एंड फोर्थ that this section shall not extend to the abatement of any offense or committing to which offense it would not be extend। यानी कि आप उसको किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी को उसकी जान बचाने के अलावा अलाउ करेंगे हर्ट करने के लिए।
सो नो ऑफेंस अगेंस्ट हिम अलाउड टू डू, उसको बस आप लाइफ बचाने के लिए ही अलाउ कर सकते हैं, ऐसा एक्ट कर सकते हैं जो उसका लाइफ सेविंग हो। Section 93, communication made in good faith. No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of the person. अगर कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन मतलब गुड फेथ में किया गया है और रीजन टू बिलीव है, उसकी वजह से अगर कोई पर्सन को कुछ होता है जो कि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए था, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ओके, लाइक इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू द पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। एक सर्जन गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है पेशेंट को कि वो अब नहीं जी पाएगा। द पेशेंट डाई इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द शॉक, और जो पेशेंट है वो शॉक से मर जाता है। ए हैज कमिट नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ। जबकि हो सक वो जानता है कि जो पेशेंट की मौत हुई है वो इस कम्युनिकेशन की वजह से हुई है। तो अगर उसने उसको बता दिया है और अगर उस वजह से उसकी डेथ हुई है उस कम्युनिकेशन की वजह से, वो उसने गुड फेथ में बताया, तो द सर्जन इज नॉट लायबल, लाइक पर्सन इज नॉट लायबल फॉर दैट कम्युनिकेशन। Section 94, act to which person is compelled by threat. So compulsion, duress. In section 94, any act done against my will is not my act. और एक मैक्सिम है इसमें, actus me in veto factus non est means acts, an act done against my will is not my act. So it is the only section which is allow you to commit offense. As general rule, not allowed to commit offense. However, sometimes I am forced to commit offense. Wherever I am forced to committing offense, my consent is not there to commit that offense. I am committing offense under duress या compulsion. Okay, so ये like बच्चे के सिर पे गन रख के आपको कंपेल करना कि आप ये ऑफेंस कर दो, so ये इस सेक्शन के अंडर में आएगा। यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए इंस्टेंट डेथ का, नॉट लेस देन डेथ। ओके, आई एम जस्ट रीड द सेक्शन। एक्सेप्ट मर्डर एंड offense against the state punishable with the death, nothing is an offense which is done by person who is compelled to do it by threat, which at the time of the doing it reasonably cause of apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequences. Like अगर आपको instant death का apprehension है यहाँ पे कि अगर आपने वो एक्ट नहीं किया तो वो आपको अभी आपकी इंस्टेंट डेथ कर देगा, देन इस सिनेरियो में आपको सेक्शन 94 का बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक दो केस लो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लाइक जैसे बच्चन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957 इलाहाबाद, और आपका उमा देवी वर्सेस एम्पायर 1924 प्रीवी काउंसिल। सो servant and like in this all the judgment what happened, servant under immediate threat of life had assist the master while murdering. So the court had that the person who abet the murder by adding under the threat of instant death get the protection under section 94. ओके, एंड यहाँ पे प्रोवाइजो है, अभी मैं ये भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। लाइक ए पर्सन हु of his own accord or by reason of threat of being beaten join a gang of decades knowing their character is not entitled to benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his association टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। सो अगर कोई उसने पर्सन अपनी सहमति से और उसको पिटाई की थ्रेट देके उन्होंने अपना ज्वाइन करा लिया ग्रुप डकैतों ने और उसने ज्वाइन कर लिया, सो उसको 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड देन एक्सेप्शन टू, ए पर्सन सीज बाय ए गैंग ऑफ डकैत एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट टू इंस्टेंट डेथ टू डू थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, सो इसमें क्या है कि एक डकैतों ने एक फोर्सफुली एक आदमी को उठा लिया और उसको इंस्टेंट डेथ की थ्रेट दी, एंड देन उसको जो लॉ में ऑफेंस है वो करने के लिए बोला। लाइक फॉर एग्जांपल, ए स्मिथ कंपेल्ड टू डू टेक हिज टूल एंड डू force the door of a house for decor to enter the plunder it is entitled to benefit of this exception. लाइक उन्होंने एक लोहार को अपने साथ ले लिया और उसको बोला अपने टूल अपने साथ ले और हम लोगों को ये गेट या ये घर
तू गेट खोल के देगा, तो उन्होंने उससे ये ऑफेंस करा है, तो इस सेक्शन में उसको इंस्टेंट डेथ का थ्रेट था, तो उसको यहाँ पे फिर 94 का बेनिफिट मिलेगा। Section 95, Act causing slight harm, triviality. So, I mean, there's a famous judgment. मैं स्टार्ट अभी रीड करूँगा सेक्शन भी आप लोगों के लिए. There's a famous judgment, बिंदेश्वरी सिन्हा वर्सेस काली सिन्हा 1997. सो इसमें एक मैक्सिम दी गई थी, डी मिनिस नॉन क्यूरेक्स लैक्स, सो लॉ इज नॉट कंसर्न विद द स्मॉल थिंग। ओके, सो 95 में ऑफेंस होना जरूरी है। आईपीसी में जो नेचर, इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टी, सिचुएशन ऑफ द प्लेस, and nothing is like against a moments is not a trivial offense. Okay, so nothing is an offense by reason that is caused or that it is intended to cause or that is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. Like ये ऐसा ऑफेंस है जो बहुत ही छोटा ऑफेंस है कि कोई ऑर्डिनरी सेंस का और टेम्परमेंट का आदमी होगा वो उसके लिए कंप्लेन नहीं करेगा। Okay, and there is a judgment. I just want to quote this judgment. रूपन देवल बजाज वर्सेस केपीएस गिल 1996. सो इस जजमेंट में क्या हुआ था, मतलब कोई छोटा सा ही मैटर था कि एक महिला थी, उसको उसके ऊपर उसने फाइल फेंक के मार दी, कुछ ऐसा ही था। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि नथिंग इज ट्रिवियल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन। सो अगर वुमेन्स के अगेंस्ट कुछ भी ऑफेंस होता है तो वो ट्रिवियल नहीं है, उसमें हम लोग उसको ट्रिवियल नहीं डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो ये था आपका सेक्शन 95। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।